নমস্কাৰ, এক ৰাজনৈতিক খবৰৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত মই শাকিল আহমেদ। সমগ্ৰ দেশতে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ চৰ্চা চলি থকা সময়তে দিল্লী দখল কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। হয়, এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই সময়ত আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ যে দিল্লীৰ যি নগৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে আৰু নগৰ নিগমৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত এইবাৰ দখল কৰিলে দিল্লী নগৰ নিগম দখল কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। শেহতীয়াভাৱে 15টা বছৰ বিজেপিয়ে শাসন কৰা দিল্লী নগৰ নিগমত এইবাৰ কিন্তু শেষ হাঁহি মাৰিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো। দিল্লী নগৰ নিগম দখল কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। দিল্লীত চলিল কেজৰিৱালৰ যাদু। আপে দখল কৰিলে দিল্লী পৌৰ নিগম। এইবাৰ ইতিহাস ৰচিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। 134খন আসন লাভ কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। 104খন আসনতে সীমাবদ্ধ হ'বলগীয়া হ'ল শাসকীয় দল বিজেপি। শোচনীয় পৰাজয় কংগ্ৰেছ দলৰ। কেৱল মাত্ৰ 9খন আসনতে সীমাবদ্ধ কংগ্ৰেছ দল। অন্যান্য দখলত 3খন আসন। একেৰাহে 15টা বছৰ দিল্লী নগৰ নিগমত ৰাজত্ব কৰিছিলে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে, আৰু বিজেপিয়ে এইবাৰ কিন্তু কেৱল মাত্ৰ 104টা ছিটতে তেওঁলোকে সীমাবদ্ধ থাকিবলগীয়া হ'ল। তাৰ বিপৰীতে 134খন আসনত আম আদমি পাৰ্টিয়ে কিন্তু বিজয় সাব্যস্ত কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে তেওঁলোকে দিল্লী নগৰ নিগম অৰ্থাৎ মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন দিল্লী এই MCD তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কংগ্ৰেছৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট শোচনীয় পৰাজয়। সমগ্ৰ দেশতে যি সময়ত কংগ্ৰেছ দলে ৰাহুল গান্ধী, তেওঁলোকৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক লৈ পেলাই সমগ্ৰ দেশতে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা তেওঁলোকে যি কৰি আছে, আৰু সমগ্ৰ দেশতে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ দিল্লীতে নহয় সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰিবৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণে চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত দিল্লীত কিন্তু তাৰ কোনো প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। কিয়নো দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ যি 134খন আসন বা বিজেপিৰ যি 104খন আসন, তাৰ বিপৰীতে কেৱল মাত্ৰ কংগ্ৰেছে 9খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া কিন্তু আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে যথেষ্ট এক দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন বুলি ক'ব লাগিব। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে দিল্লী নগৰ নিগম দখল কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। আম আদমি পাৰ্টিয়ে 134খন আসন দখল কৰি দিল্লীৰ যি পৌৰ নিগম, দিল্লীৰ যি নগৰ নিগম MCD, সেয়া কিন্তু দখল কৰিছে। যি সময়ত সমগ্ৰ দেশতে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন বা হিমাচল বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ কথা আলোচনা হৈ আছে, চৰ্চা হৈ আছে। কেৱল মাত্ৰ এটা দিন ফলাফল ঘোষণাৰ, কিয়নো 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে গুজৰাট আৰু হিমাচলৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কিন্তু ঘোষণা হ'ব। আৰু তাৰ পূৰ্বে আজি 7 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিল্লী নগৰ নিগমৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত আজি কিন্তু শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। দিল্লী নগৰ নিগমৰ এই ফলাফলত আম আদমি পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিলে 42.19% ভোট, আৰু তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে 38.97% ভোট। কিন্তু অতি শোচনীয়ভাৱে, অতি বেয়া ধৰণে কংগ্ৰেছ দলে লাভ কৰিলে 11.77% ভোট। পূৰ্বতে কিন্তু এইখন দিল্লীতে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আছিলে। তাৰ পিছত বিধানসভা দখল কৰিছিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে, কিন্তু একেৰাহে 15টা বছৰ এই MCD কিন্তু দখল কৰি আছিলে বিজেপি দলে। কিন্তু এইবাৰ বিজেপি দলে 15টা বছৰত তেওঁলোকৰ যি শাসন আছিলে, সেই শাসনৰ অৱসান ঘটাই আম আদমি পাৰ্টিয়ে কিন্তু এইবাৰ দিল্লীৰ MCD দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে দিল্লীত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আম আদমি পাৰ্টিৰ যি কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়ত যি কৰ্মকৰ্তাসকল আছে বা আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা কেজৰিৱাল বা আন যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ আছে, তেওঁলোকৰ যি পাঞ্জাৱৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান, তেওঁ আহি পেলাই দিল্লীত উপস্থিত হৈছে, বা তেওঁলোকে এক তাতে উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা কেজৰিৱালে তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচন জয়লাভ কৰাৰ পিছত ৰাইজক সম্বোধন কৰি ইতিমধ্যে তেওঁ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। সেই বক্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই বক্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा
कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है, और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री से भी, प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूं, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अब अपने को, जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने,
दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है। और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को, अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है, इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से, अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, आपके पतन पक्का है उसके बाद। भारत माता की। যিসময়ত সমগ্ৰ দেশতে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ চৰ্চা হৈ আছে আৰু বহুতে এনেকুৱা ধৰণে ক'ব বিচাৰিছে যে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ছেমি ফাইনেল গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন। আৰু এই গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে দিল্লী নগৰ নিগমৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল বা তাৰ ফলাফল আজি ঘোষণা কৰিলে, সেই ফলাফলত কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীয়ে হেই খাই মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 134খন আসনেৰে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে কিন্তু দিল্লী নগৰ নিগম দখল কৰিলে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। গতিকে দিল্লীৰ যি নিৰ্বাচন যি ফলাফল, সেই নিৰ্বাচনৰ যি দেখা গৈছে যে মানুহ কিন্তু নীৰৱভাৱে, নীৰৱ দৰ্শক হিচাপে কিন্তু যি ভোটাৰসকল আছে তেওঁলোকৰ যি সাংবিধানিক অধিকাৰ, তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি পেলাই শাসকীয় যি বিজেপি দল আছিলে বা কেন্দ্ৰতো বৰ্তমান যি শাসকীয় দল বিজেপি আছে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীক ভোট প্ৰদান কৰি কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীক এবাৰ শাসনৰ গাদীত বহুৱালে দিল্লীবাসীয়ে। গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনত গুজৰাটৰ জনসাধাৰণে কাৰ পক্ষত তেওঁলোকৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে সেয়া কিন্তু কালিৰ দিনত স্পষ্ট হ'ব, যদিহে জনসাধাৰণে নীৰৱে থাকি
কেৱল মাত্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই যদি ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দিল্লীত যেনেকুৱা ধৰণে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে 15 বছৰ শাসন কৰিছিলে MCDত বিজেপিয়ে, একেধাৰে কিন্তু এক দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে গুজৰাট বিধানসভাতো কিন্তু ৰাজত্ব চলাই আছে বিজেপিয়ে। গতিকে এইবাৰ গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনতো কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি, বা আম আদমি পাৰ্টিয়ে গুজৰাটতো তেওঁলোকৰ কিবা বিশেষ যাদু দেখাব পাৰিব নেকি, তাক লৈ আমি কাইলৈ অৰ্থাৎ 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বিস্তাৰিতভাৱে প্ৰকাশ কৰিম। গণ অধিকাৰ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।